معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اویکنگ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سچ کا ساتھ میں آپ کا میزبان سید بختیار الدین قادری۔ آئیں سب سے پہلے سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ امریکہ پیچھے ہٹنے کے لیے نہیں، دنیا کی قیادت کے لیے تیار ہے، جو بائیڈن۔ امریکہ بے مقصد جنگوں میں نہیں الجھے گا، جو بائیڈن۔ سعودی عرب ہوشیار رہے، جوابی حملے مزید شدید ہوں گے، انصار اللہ۔ افغانستان میں 592 کروڑ لاگتی 100 انڈین پروجیکٹس۔ مدھیہ پردیش میں لو جہاد نہیں ہونے دیں گے، وزیر اعلیٰ چوہان۔ بی جے پی میں ہمت ہے تو مجھے جیل میں ڈال دے۔ لو جہاد کی قانونی تشریح کیا ہے، شیو سینا۔ پرانا شہر کیا ہندوستان کا حصہ نہیں، بی جے پی صدر سے محمد علی شبیر کا سوال۔ شاہین باغ کی دادی ٹائم میگزین کے بعد بی بی سی کی 100 بااثر خواتین کی فہرست میں بھی شامل۔ تلنگانہ میں فرقہ وارانہ کشیدگی پیدا کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت۔ حیدرآباد بلدی انتخابات میں صدر مجلس اتحاد المسلمین بیرسٹر اسد الدین اویسی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے آج یراگڈا علاقے میں منعقدہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے 26/11 بمبئی حملے کو یاد کیا، مرنے والوں کو خراج عقیدت پیش کی۔ ضلع کڑپا میں زبردست بارش کا سلسلہ جاری، آئندہ 24 گھنٹے بارشوں کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ نائب وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش امجد باشا نے شہر کڑپا کے عوام سے نیور طوفان سے چوکس رہنے کی اپیل کی۔ ضلع ایس پی کڑپا کے کین انگرالن کا بارش سے متاثرہ علاقوں کا دورہ، پولیس جوانوں کو ضروری ہدایات جاری کیے۔ آئیں اب خبریں تفصیل کے ساتھ ملاحظہ کریں۔ امریکہ پیچھے ہٹنے کے لیے نہیں، دنیا کی قیادت کے لیے تیار ہے، جو بائیڈن۔ امریکہ کے نومنتخب صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ امریکہ دنیا کی قیادت سے پیچھے نہیں ہٹے گا، بلکہ دنیا کی قیادت کرتے ہوئے مخالفین کا مقابلہ اور اتحادیوں کے ساتھ مل کر چلے گا۔ امریکہ بے مقصد جنگوں میں نہیں الجھے گا، جو بائیڈن۔ امریکہ کے نومنتخب صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ امریکہ بحر الکاہل اور بحر اوقیانوس کے سمندروں میں عالمی قیادت کا کردار ادا کرے گا اور غیر ضروری تنازعات میں اس کا کوئی کردار نہیں ہوگا۔ بائیڈن نے کہا کہ امریکہ اپنی قومی سلامتی کی ٹیم متعارف کروانے کے لیے غیر ضروری جنگوں میں اپنا کردار ادا نہیں کرے گا اور نہ اپنے وسائل کو بے مقصد جنگوں پر صرف کیا جائے گا۔ سعودی عرب ہوشیار رہے، جوابی حملے مزید شدید ہوں گے، انصار اللہ۔ یمن کے نیشنل سالیوشن حکومت کے وزیر اعظم نے جارح ملکوں کے زیر قبضہ علاقوں من جملہ عدن اور دوسرے علاقوں کی صورتحال کو ابتر قرار دیا ہے۔ انہوں نے مذکورہ علاقوں کے عوام سے اپیل کی کہ وہ جارحین کے مقابلے میں ڈٹ جائیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق یمن کی نیشنل سالیویشن حکومت کے وزیر اعظم عبدالعزیز بن حبتور نے سعودی اتحاد اور اس کے اعلی کاروں کے مقابلے میں استقامت کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے سعودی اتحاد اور اس کے کرائے کے فوجیوں کے زیر قبضہ یمنی علاقوں کے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ عاصبوں اور جارحین کے مقابلے میں بھرپور طریقے سے ڈٹ جائیں اور جارحین کا ڈٹ کر مقابلہ کریں۔ افغانستان میں 592 کروڑ لاگتی 100 انڈین پروجیکٹس۔ مرکزی وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے اعلان کیا ہے کہ ہندوستان کی جانب سے افغانستان میں 100 اعلیٰ ترین پراثر کمیونٹی پروجیکٹس شروع کیے جائیں گے، جن پر 80 ملین امریکی ڈالر 592 کروڑ روپے کی لاگت آئے گی۔ مدھیہ پردیش میں لو جہاد نہیں ہونے دیں گے، وزیر اعلیٰ چوہان۔ اتر پردیش حکومت کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مدھیہ پردیش حکومت نے اپنے نئے آرڈیننس میں نام نہاد لو جہاد سے متعلقہ جرائم کے لیے زیادہ سے زیادہ 10 سال کی سزا تجویز کی ہے۔ ضلع امریہ میں ایک عوامی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ شیوراج سنگھ چوہان نے کہا، میں کسی بھی قیمت پر مدھیہ پردیش کی سرزمین پر لو جہاد کی اجازت نہیں دوں گا۔
बी जे पी में हिम्मत है तो मुझे जेल में डाल दे। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने आज बीजेपी को चैलेंज करते हुए अगर बीजेपी में हिम्मत है तो उन्हें गिरफ्तार करके दिखाए। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद में अगले साल होने वाले असेंबली इंतखाबात में कामयाबी हासिल की जाएगी। ममता बनर्जी ने इल्जाम आयद किया कि बीजेपी तृणमूल कांग्रेस के मेंबरान असेंबली को रुपये के पेशकश करके बीजेपी में शामिल होने की दावत दी जा रही है। पांकोड़ा में इंतखाबी मुहिम का आगाज करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी कौम की सबसे बड़ी लानत है। लव जिहाद की कानूनी तशरीह क्या है? शिवसेना ने अपने तर्जुमान अखबार सामना के इदारिया में लिखा है कि लव जिहाद का वावेला मचाया जा रहा है, लेकिन पहले उसकी कानूनी तशरीह तो कर दीजिए। बीजेपी कायदीन को इस ख्याल से बाज आ जाना चाहिए कि वो लव जिहाद के मसले पर शोर मचाते हुए हुकूमत महाराष्ट्र को परेशान कर सकते हैं। पुराना शहर क्या हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं? बीजेपी सदर से मोहम्मद अली शब्बीर का सवाल। साबिक अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने बीजेपी के रियासती सदर बी संजय के पुराने शहर में सर्जिकल स्ट्राइक से मुतालिक बयान की सख्त मजम्मत की। उन्होंने कहा कि रुकन पार्लियामेंट की हैसियत से संजय को जानना चाहिए कि सर्जिकल स्ट्राइक अंदरून मुल्क नहीं बल्कि दुश्मन की सरजमीन पर की जाती है। शाहीन बाग की दादी टाइम मैगजीन के बाद बीबीसी की 100 बाअसर खवातीन की फहरिस्त में भी शामिल। टाइम मैगजीन की 2020 की 100 सबसे बाअसर शख्सियात की फहरिस्त में जगह बनाने के बाद अब शाहीन बाग की बिल्किस दादी ने एक और कामयाबी हासिल करते हुए बीबीसी 100वीं ऑफ द एयर में भी मकाम हासिल किया है। तेलंगाना में फिरका वाराना कशीदगी पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत में तशद्दुद और फिरका वाराना कशीदगी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की पुलिस ओहदेदारों को हिदायत दी है। वजीर आला ने कहा कि हुकूमत के पास बदअमनी फैलाने वाले अनासिर से मुतालिक यकीनी तौर पर इत्तलाआत हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी हुकूमत के एजेंडे में सरे फहरिस्त है। किसी भी फर्द या अफराद या अनासिर की जानिब से अमन और हम आहंगी की फिजा को मुतासिर करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। हैदराबाद बल्दी इंतखाबात में सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जलसे से खिताब करते हुए आज यरागड्डा इलाके में मुनक्किदा इजलास से खिताब करते हुए 26/11 बम्बई हमले को याद किया, मरने वालों को खराज अकीदत पेश की। जिसने अपनी जान दहशतगर्दों के मुकाबला करते हुए इस मुल्क की सालिमियत को खतरा पेश आया, हेमंत करकरे ने अपनी जान को कुर्बान कर दिया, तो बीजेपी की मौजूदा रुकने पार्लियामान कहती है कि मैंने हेमंत करकरे को बदवा दी। अब आप खुद बताइए कि बीजेपी बड़ी देशभक्ति की बातें करती है, मगर ये मोहतरमा जो रुकने पार्लियामान है, इनका बयान ऑन रिकॉर्ड है, और ये वही मोहतरमा है जिन्होंने ये कहा था कि नाथूराम गोडसे जिसने महात्मा गांधी को गोली मारकर हलाक कर दिया, उनकी जान ले ली, वो भी बहुत बड़ा देशभक्त है। ये बीजेपी का ढकोसला नेशनलिज्म है कि उनकी पार्टी में ऐसे एमपीज हैं, उन लोगों के लिए इस तरह की बातें करते हैं जिसने महात्मा गांधी को मारा, उसके ताल्लुक से कह दिया गोडसे देशभक्त है। जो हेमंत करकरे ने अपनी जान को कुर्बान कर दिया, उसके बच्चे यतीम हो गए, उसकी बीवी बेवा हो गई, तो बीजेपी की मोहतरमा एमपी कहती है कि मैंने हेमंत करकरे को शराब दिया, इसको बद्दुआ दी, इसलिए वो मर गया। जिला कड़पा में जबरदस्त बारिश का सिलसिला जारी। आइंदा 24 घंटे बारिशों का ये सिलसिला जारी रहेगा। आंध्र प्रदेश में नेवर तूफान जोरों से जारी है। रियासत के अजला कड़पा, चित्तूर, अनंतपुर और नेल्लूर अजला में तूफान का ज्यादा असर पड़ा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत के 10 मंडलों में 200 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों तक तूफानी बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। हुक्काम ने नशेबी इलाकों के अवाम से एहतियात बरतने का मशवरा दिया है।
मछुआरों को समंदर में न जाने का इंतबाह दिया गया है। जिला कड़पा के कई मकामात पर पेड़ गिरने और बरक़ी खंभे गिरने की इत्तलात मिल रही हैं। ताहाल किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। शहर कड़पा के बुग्गावंका नदी में डैम का पानी छोड़ने की वजह से इससे मुत्तसिल इलाकों रविंद्र नगर, टंटा, बादला साहब मकान, रकीब शाह वली दरगाह इलाकों के अवाम को चौकस रहने या दूसरे इलाकों को मुंतकिल होने की सलाह दी गई है। आज शहर कड़पा के CSI चर्च के सामने एक दरख्त करीब खड़ी इनोवा कार पर गिर गया, जिससे कार को नुकसान पहुंचा। किसी का भी जानी नुकसान नहीं हुआ। इतला मिलते ही DSP कड़पा सुनील ने जाए वक़्त पहुंचकर क्रेन की मदद से इस दरख्त को सड़क से हटाने के इक़दाम किए। बदवेल में भी कई नशेबी इलाकों में बारिश का पानी घरों घरों में दाखिल हो गया। खड़ी फसलों को काफी नुकसान पहुंचने का अंदाजा लगाया गया है। नायब वज़ीर आला आंध्र प्रदेश अमजद बाशा ने शहर कड़पा के अवाम से नेवर तूफान से चौकस रहने की अपील की। नेवर तूफान की वजह से बुग्गावंगा डैम से नदी में 7000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसकी वजह से इस नदी से मुत्तसिल इलाकों के अवाम चौकसी इख्तियार करते हुए एहतियाती इक़दाम करें। जिला इंतजामिया की जानिब से भी तमाम जरूरी इक़दाम किए गए हैं। मुतासरीन के रहने के लिए मुतबादिल इंतजाम किए गए हैं। खाने का भी इंतजाम किया गया है। पुलिस चौकसी से मुतासरा इलाकों में गश्त कर रही है। अमजद बादशाह ने अवाम से हिम्मत से रहने की अपील की है। जिला SP कड़पा KKN अनवरन का बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा, पुलिस जवानों को जरूरी हिदायत जारी किए। रियासत आंध्र प्रदेश जिला कड़पा के सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान ने बताया, जिला SP कड़पा ने आज जिला के बारिशों से मुतासरा कई इलाकों का दौरा करके हालात का जायजा लिया और पुलिस के जवानों को जरूरी हिदायत जारी किए। कड़पा, तिरुपति, शाहरापुर, राजनपेट के करीब पोली तालाब का पानी लबरेज होकर सड़क पर जमा हो जाने से कड़पा तिरुपति आमदोरफ्त का रास्ता बंद हो गया। अनबुरादन ने कड़पा से तिरुपति जाने वालों के लिए बराह रायचोटी जाने मुतबादिल रास्ता इख्तियार करने की हिदायत दी है। इसी तरह से राजनपेट से नेल्लूर जाने वाली गाड़ियों को बराह कड़पा जाने की हिदायत जारी की है। अनबुरादन के हमराह राजनपेट DSP शिवा भास्कर रेड्डी, मुनव्वर CI नरेंद्र रेड्डी, SI रोशन मौजूद थे। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन खबरें। बने रहें आने वाली ताज़ा तरीन खबरों के साथ। अब इजाज़त दीजिए अवेकिंग न्यूज़ टीम को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शब खैर। तुम खास हो, आम नहीं, तुम सारे घर की इज्जत हो, तुम हाकिम हो, महकूम नहीं। ये लौह कलम तुम ही से है, तुम ही तकदीर बदलते हो, तुम ही हो मोहम्मद की उम्मत, ना झुकते हो ना डरते हो, तुम ही हो मोहम्मद